Okay, hello everyone. I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now, we'll be doing one such gravitation chapter NTSC question discussion. Okay, so as of now, we are done with our laws of motion as well as motion chapter. तो उसमें कोई दिक्कत है बताओ. Yes, प्रणाल. अभी तक हम लॉज ऑफ मोशन एज वेल एज मोशन चैप्टर के सारे डाउट्स वगैरह कर चुके हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर चुके हैं. एंड व्हाट अबाउट श्याम? श्याम, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यस श्याम. ओके, ठीक है. व्हाट अबाउट अनुष्का, आदर्श, पाखी, शुभम, सांची, सक्षम? So we were doing the practice question, the numerical practice of the chapter which is related to ninth, like motion as well as laws of motion. तो हमने previous year के questions हम already कर चुके हैं. So those who has joined, means those students who is new to our platform, they must know we were discussing the question paper of NTSC, है ना? So we were doing the entire question of NTSC. NTSC is nothing but it is nothing but a national level examination. It is a scholarship based examination. Okay, comprises of two stages, stage 1 as well as stage 2. Those who qualify stage 1, which is a state level examination, they will be moving to stage 2, which is a second level, which is a national level examination. तो अभी तक stage 1 में आपका आपका state, particular state ही conduct कराता है, ठीक है? And what about the syllabus and marking scheme? So let us see the marking scheme first. Marking scheme of NTSC examination comprises of math paper as well as SAT paper. So within one day you'll be facing math paper as well as SAT paper, both दोनों होंगे. And again math में you'll be having 100 question to answer, with you'll be getting 100 marks for that each particular correct answer. And SAT comprises of social studies, maths as well as science, and these are the questions which comes in this particular examinations. Again you'll be having 100 questions to answer, and with each correct answer you'll be get one mark. Okay, so that means you won't be having negative mark in this particular examination. So that means कि you have to attempt all the paper. I hope कि ये सारी चीज़ें clarity सबको हो गई है, कि मतलब कि छोड़ना कुछ नहीं है. And what about syllabus? Syllabus is of your 9th as well as class 10th standard. दोनों के syllabus होते हैं. तो अभी तक तो अपना 9th कर रहे हैं, है ना? 9th के सारे syllabus कर रहे हैं, ठीक है? So today's chapter is all about gravitation. तो gravitation में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन से gravitation के और topics हैं that we are going to study. Can anybody tell me? Yes, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो in your 9th standard. Yes, शुभम. बताओ क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम ग्रेविटेशन में. And others? Universal law of gravitation, acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity with height, depth, है ना? And with the latitude as well as with rotation, and your Kepler's law of planetary motion भी पढ़ना है आपको, प्लस साथ साथ में satellite communication systems या orbital radius, orbital velocities. These are the things that you need to learn, as well as vertical motion. तो vertical motion हम already motion chapter में पढ़ चुके हैं, है ना? Acceleration due to gravity, G का जहाँ पे use होता है, जहाँ पे G की वैल्यू 9.8 लेते हैं, है ना? तो जल्दी से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टेड ग्लांस में, कि what are the things that we are going to study. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल you'll be studying the universal law of gravitation. ठीक है? तो universal law of gravitation किसने दिया था बताओ? ओके, ठीक है, उन्होंने डिवाइस किया था, ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, है ना? तो व्हाट डज इट से? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई? ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, है ना? न्यूटन्स. तो ये ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? कैन एनीबडी टेल मी? एंड वी आर स्टडिंग अबाउट ग्रेविटेशन. दैट मीन्स कि अगर दो बॉडीज है, लेट बॉडी m1
which is having a mass of m1 kg. Let another body is there whose mass is m2 kg. Their center to center separation is r. Why I'm taking the center to center separation? Can anybody tell me? Why I'm taking center to center separation? बताओ. Because it is a spherical body, and the spherical body center of mass is situated at its center. So that means the entire body, the entire mass of the system can be considered to be at its center, है ना. तो जो भी spherical bodies हैं, ठीक है, लाइक राउंड शेप बॉडीज, उनका सारा सेंटर कहाँ पे होगा, मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसके सेंटर पे. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक सेंटर टू सेंटर सेपरेशन. एंड द लाइन जॉइनिंग दीज टू मासेस, देयर सेंटर टू सेंटर, एट विच द ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट, है ना. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू सेंटर, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय directly proportional to product of their masses, and it is inversely proportional to square of the distance between them, है ना. So again, summing these two expression, you will be getting m1 m2 divided by r square. Again, a proportionality constant जब हटता है, you will be getting a constant that is called universal gravitational constant. So it is equivalent to m1 m2 divided by r square. ठीक है. जी की वैल्यू कितनी होती है बताओ, -11. यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इसका होल स्क्वायर ना. जी की वैल्यू निकालनी है, ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, ये क्या है केजी का होल स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. यू मस्ट नो इट कि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट यूनिवर्स. ऐसा नहीं है कि किसी प्लैनेट पे डिफरेंट हो गई, दूसरे प्लैनेट पे डिफरेंट हो गई, है ना. सो दिस इज एवरेज वैल्यू दैट यू मस्ट रिमेंबर. ठीक है. तो ये इतनी वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये याद रखनी है. तो इतने न्यूटन फोर्स से ये भी खींचा चला आएगा, ये भी खींचा चला आएगा इसकी तरफ. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ स्टेट्स दैट every body within the universe which is having mass will be attracted towards another body having mass with a force called gravitational force, and this force is directly proportional to product of their masses, inversely proportional to square of the distance between them. I hope this thing is clear to everyone. Harshit, क्लियर है ये, चलो वेरी गुड. सो इतना तो हम जान चुके हैं. अगर इन दोनों का सेपरेशन बढ़ा दूं, मैं डबल कर दूं, तो अब नया फोर्स कितना होगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, सब 1/4, क्योंकि सेपरेशन डबल कर दिया है ना आपने. तो r बिकम्स ट्वाइस ऑफ r, तो ट्वाइस ऑफ r का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा पहले वाले से. आई होप दिस थिंग इज क्लियर, है ना. तो मास को बढ़ाएं या घटाएं या डिस्टेंस को बढ़ाएं या घटाएं तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना. तो कोई इसमें इशू है नहीं. सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. बिफोर दैट यू मस्ट रिमेंबर व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ A1 मास, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ M1, फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास. डोंट यू थिंक फोर्स कितना है, सो इट इज इक्वल टू G m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. कोई ये बता सकता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या इसके खुद के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं ना. तो याद रखना हमेशा, इसका जो एक्सेलरेशन है इसके खुद के मास पे डिपेंड नहीं करता, दूसरे वाले के मास पे डिपेंड करता है. ओके बोलो, इज इट क्लियर. चलो वेरी गुड. सो नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ. अब जल्दी से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लेते हैं. दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. सपोज दिस इज अर्थ एंड यू आर एट इट सरफेस, योर मास इज स्मॉल m, इसका मास ले लेते हैं कैपिटल M. दिस इज द सेंटर, है ना. तो अब जल्दी से, डोंट यू थिंक
आप अर्थ का होल मास कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो इसके सेंटर पे, तो सपोज तो कैपिटल एम मास यहाँ पे होगा, कोई बता सकता है, कोई दिक्कत है इसमें? और सरफेस पे स्मॉल एम मास है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ अर्थ, डोंट यू थिंक, है ना? तो इसका होल मास कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो ना इसके सेंटर पे, तो लेट हमने ले लिया। सो दिस इज अ टू बॉडी सिस्टम, तो अब तो आसानी से कर सकते हो ना, ये कितने से अट्रैक्टेड होगा, ये कितने से अट्रैक्टेड होगा, तो जल्दी से निकालो। इसका अट्रैक्शन इस तरफ कितना होगा, इसका अट्रैक्शन कितना होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होगा? जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डोंट यू थिंक यही होगा, है ना? अब इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है। दिस इज द फोर्स विद विच अ सर्टेन बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यही है फोर्स। इसी को क्या कहते हैं हम? वेट भी कहते हैं, इसी को वेट भी कहते हैं ना, बोलो। तो वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो mg के बराबर होगा ये, बोलो। सो स्मॉल एम से स्मॉल एम, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो कोई भी बॉडी, ये स्मॉल एम वाला जो है, या कितने केजी का मास है जो सरफेस पे रख दो, लाइक कि m2, ये m2 kg है यहाँ पे, सपोज ये m2 kg है, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स इट सेंटर, इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही होगा, है ना? एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन मास, इसके खुद के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, बोलो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट के खुद के मास पे डिपेंड करता है क्या? तो वो किस पे डिपेंड करता है? उस प्लैनेट के मास पे, उस प्लैनेट के रेडियस पे, है ना? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी अंडर कंसिडरेशन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ दैट बॉडी, that heavenly body and radius of that heavenly body. I hope this thing is clear, बोलो। तो आप g की वैल्यू आसानी से तो पुट कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी पता है, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, है ना? 10⁻³ मीटर, कैपिटल आर तो लिख सकते हो 6.4 × 10⁻6 आ जाएगा लगभग। अखिल आ रहा समझ में? अब देखो, सो ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पुट की हमने, तो ये आया कितना? क्लोज टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ, उस प्लैनेट पे जहाँ पे जिसका मास डबल है, मतलब मान लो एक प्लैनेट है जिसका मास डबल है और रेडियस भी डबल है अर्थ के कंपैरिजन में, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी न्यू कितना होगा उसके सरफेस पे, अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में? जी के टर्म में निकाल दो, कितना होगा? कैपिटल G 2m/2r का होल स्क्वायर, यही होगा। तो इट वुड बी इक्वल टू Gm/2⁴ 4r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ G नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इस टाइप से निकाल सकते हो ना, ठीक है, बोलो। क्लियर? तो इस टाइप से आप आसानी से निकाल सकते हो। अब वेरिएशन विद, अगर मास कम कर दें, रेडियस बढ़ा दें, तो उस प्लैनेट के सरफेस पे जी क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हो ना, बताओ। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। अब जल्दी से हम वेरिएशन पे आ जाते हैं। तो सरफेस पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट 10 kg का 1 kg का, दोनों का एक्सेलरेशन सरफेस पे सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके खुद के मास पे डिपेंड
नहीं करता। इसका भी एक्सेलरेशन 9.8 ही होगा, इसका भी 9.8 होगा, है ना। तो ये इसको सेम टाइम नीचे लगेगा आने में, है ना, अगर एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो ले लेते हो तो, ठीक है। तो आई थिंक ये गैलीलियो ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, वो लीनिंग टावर पीसा पे चढ़ गया था। आई थिंक आपको पता है एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो उसने 2 बॉल थ्रो किया था, दोनों के और नीचे एक आदमी को कैच करने के लिए बोला, टाइम नोट डाउन करने के लिए बोला था, तो टाइम दोनों का सेम ही था नीचे आने का, है ना। तो इससे पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबका सेम ही है, ठीक है। बट ये अगेन एयर रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, और क्या, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होता है एयर रेजिस्टेंस और ज़्यादा लगता है ना, जितना ज़्यादा स्पीड होता है एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब जल्दी से वेरिएशन पे आ जाते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ, सीधा मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वो ही आपको लर्न करना है, ठीक है। अब देखो ये अर्थ है, अर्थ के h हाइट पे चले जाऊं मैं, दिस इज रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी न्यू है, जो नया एक्सेलरेशन है, और सरफेस पे कितना है, स्मॉल g 9.8। तो यहाँ पे g की वैल्यू होती है g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है ना। कैसे निकाल सकते हो भाई, सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ है ना इसके सेंटर पे, तो कितना दूर हो आप सेंटर से, h प्लस आर, है ना। तो g कैसे निकालोगे, g कैसे निकालोगे, जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही करोगे। जी एम बाय, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या अंदर बच जाएगा, 1 प्लस एच बाय आर, यही होगा जी। और ये क्या होता है, स्मॉल जी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। कितने हाइट पे जाने के बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जी न्यू, ये आ गया, ठीक है। बोलो। अब डेप्थ पे चले जाते हैं, मान लो सरफेस ये रहा, सरफेस के डी डेप्थ पे चले जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश ले लेता हूँ। वो कितना है, जी डैश कितना होता है, जी सरफेस पे तो जी था, 1 माइनस डी बाय कैपिटल आर, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। विद डेप्थ, इतने डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश हो गया, इतने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया। तो ये चीज़ याद रखना है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, जैसे जैसे अंदर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। तो कोई बता सकता है कितने डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, बताओ। ओके, वेरी गुड। ओके, सो हम कह सकते हैं ना, कितने डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाए, मतलब कि ये वाली जीरो हो जाएगी ना, कितना अंदर जाएं, तो जीरो इज इक्वल टू कितना होगा, जी 1 माइनस डी बाई आर, है ना। ये आ जाएगा तो अगेन जीरो हो जाएगा, तो 1 मस्ट भी इक्वल टू डी बाई आर, सो डी इज इक्वल टू आर। तो इतना मतलब कि आप सीधा खोद के रेडियस ऑफ अर्थ इसके सेंटर पे पहुंच जाओ, जहाँ डी इज इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा, वहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन विद डेप्थ, वेरिएशन विद हाइट। अगेन यहाँ पे एक मैं स्मॉल ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको आप क्या कहते हैं, आपका इक्वेशन इजी हो जाए, है ना। सो व्हाट यू कैन डू, देखो अगर कोई पूछे कितने हाइट पे जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 75% बची रह जाए, तो आप कैसे यूज़ करोगे, ओनली जो सरफेस पे जितनी थी उसका 75% ही बचा रह गया है, तो आप क्या यूज़ करोगे, जी एन कितना होना चाहिए, इस टाइप से याद रखना। वी ऑलरेडी नो जी इज इक्वल टू 1 प्लस, ये होता है, कितना बचा रह जाएगा बताओ। तो इसका 75% निकाल सकते हो जी का, बोलो। यहाँ से 75% निकाल सकते हो, क्योंकि सिर्फ कितने हाइट पे चले जाएं हम, एच कितना हो, ताकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सरफेस के कंपैरिजन में 75% ही बची रह जाए। तो इसका मतलब 25% का लॉस हुआ होगा, बोलो।
25% का लॉस हुआ होगा। यस मयंक। तो अब कैसे यूज़ करोगे इक्वेशन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसको 100G ले लो, ये 100% हो गया, तो ये कितना बचा रह गया, 75G हो जाएगा। अगर ये 100% है तो इसका 75% यही होगा ना, 75G बोलो, होगा। 75% ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचा रह गया ना, 75%। तो अगर ये 100% है तो इसका 75% कितना होगा, 75G नहीं होगा, बोलो 75। ये जो नया हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 75% ही है ना, पहले जो सरफेस पे था उसके कंपैरिजन में। तो अगर ये सरफेस पे अगर 100G ले लूँगा तो यहाँ पे कितना होगा, 75G। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब G से G कैंसिल कर सकते हो, बाकी सॉल्व कर लोगे, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो इस टाइप से सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार आपको बोल देगा कि बताओ कितने हाइट पे चले जाएं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ 10% बची रह गई, 10% बची रह गई, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 10G और ये 100G। इस टाइप से कर सकते हो, बोलो यस अखिल। शुभम, ये समझ में आया ना, सिर्फ 10% बचा रह गया। कई बार आपसे क्वेश्चन इस टाइप से होगा, एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस बाय 90%। 90% का रिडक्शन का मतलब 10% बचा रह जाना, तो ये 10G लगा सकते हो यहाँ। क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से 10G लगा दिया, यहाँ 100 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, G से G कैंसिल। अब H के टर्म में आ जाएगा आंसर, H और R के टर्म में। R की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 6400 किलोमीटर होती है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट करके H की वैल्यू निकाल सकते हो इन द टर्म्स ऑफ मीटर में, बताओ आ जाएगा, है ना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे ही डेप्थ पे भी हो जाता है कि कितने डेप्थ पे चले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 20% हो जाए, 30% हो जाए, तो उसमें भी वही करोगे ना। मान लो 20% ही बचा रह गया, तो 20G कर देना, इजिकल टू कितना होता है, G 1 माइनस D बाई R। कितने डेप्थ, तो डेप्थ निकल जाएगा, G से G कैंसिल, है ना, सिंपल है। अब देखो एक चीज़ और पढ़ा है आपने, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड, है ना, बिकॉज अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, इट इज जस्ट लाइक दिस। इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोल रेडियस, होगा। इक्वेटर का जो रेडियस है ज़्यादा होता है ना एज कम्पेयर टू पोल रेडियस, क्योंकि अर्थ इज बल्ज आउट एट इट्स मिडल, इक्वेटर पे थोड़ा बाहर की तरफ है, परफेक्ट स्पीड तो नहीं है ना, बताओ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये इक्वेटर पे इतना है, पोल पे Gp है, तो Ge कितना होगा, Gm बाय Re का होल स्क्वायर होगा। मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M। Gp कितना होगा, पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Gm बाय Rp का होल स्क्वायर। तो कौन सा बड़ा होगा, जल्दी बताओ। यस मुस्कान, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा है कि इक्वेटर पे, बोलो भाई। पोल पे ज़्यादा है ना, क्योंकि पोल का रेडियस कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ रेडियस कम है वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब हाइट पे चले जाएं तो G कम हो रहा है, डेप्थ पे चले जाएं G कम हो रहा है, तो सरफेस पे मैक्सिमम है, और मैक्सिमम सरफेस पे भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, पोल पे, ठीक है। तो पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो G बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, और पोल से इक्वेटर की तरफ आओ तो घटेगा। तो ये चीज़ याद रखना है। एक चीज़ और, कॉन्स्टेंटली अर्थ इज रिवॉल्विंग, रोटेटिंग ऑल्सो, है ना, तो रोटेट भी कर रहा है ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर G जो लग रहा है, स्मॉल g, इक्वेटोरियल G,
और इसके जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसका कुछ फोर्स कम भी हो जाएगा ना, अंदर की तरफ खींचने की टेंडेंसी और कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसकी mv²/r जो फोर्स है वो भी बाहर की तरफ इसको खींचेगा, बोलो। तो रोटेशन की वजह से भी कम है और ऐसे कम तो है ही, ठीक है। देखो अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है ना, तो इस ऑर्बिट पे हो आप, है ना, आर ई पे, तो ऐसे रिवॉल्व कर रहे होगे आप भी तो सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे रिवॉल्व कर रहे होगे, है ना। तो अंदर खींचने की टेंडेंसी कौन सी होती है, वेट, m इंटू जी ई, ये वेट है, इतने फोर्स से आप खींच रहे हो। बाहर का एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो आपको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, नॉट बैलेंस्ड, वो फोर्स आपको बाहर की तरफ आपकी टेंडेंसी होगी, क्योंकि आप यू आर ऑल्सो मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तो अंदर खींचने की टेंडेंसी जो होगी अब वो एम जी ई माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर ई नहीं होगा, डोंट यू थिंक, है ना। तो इतने फोर्स से आप अंदर की तरफ खींचोगे नाउ, तो जी की वैल्यू होगी वो होगा जी ई माइनस वी स्क्वायर बाय आर ई. So this is the acceleration, net acceleration due to gravity with which you will be attracted towards the center of the earth on equator. ठीक है, तो रोटेशन की वजह से भी, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द लॉन्चिंग पैड, जो रॉकेट्स के जो लॉन्चिंग पैड होते हैं नियर इक्वेटर होते हैं, क्यों, क्योंकि उसको ग्रेविटी को ओवरकम करना आसान होता है, ठीक है ना। नाउ कम्स, अब जब इतना पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन पढ़ लिया है, तो अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अर्थ एंड सैटेलाइट, या अर्थ या मून सिस्टम जो भी कह लो आप। सपोज दिस इज अर्थ जिसका मास m है और ये सेंटर है, एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड। मून ले लो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भी है, सपोज दिस इज मून, स्मॉल m ले लेते हैं इसका मास, ठीक है। ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, दिस इज ऑर्बिटल रेडियस, लेट इट बी r, ठीक है, लेट इट बी स्मॉल r। तो ये सर्कुलर ट्रैक पे भी होगा, तो विद सर्टेन स्पीड मूव कर रहा होगा मून, है ना। तो आप देखो, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अगर इस कंटिन्यूसली सर्कुलर ट्रैक पे है, डोंट यू थिंक इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस कर रहा होगा इसको, इसके ग्रेविटी को, है ना। इस अगर ऑर्बिटल ट्रैक में अगर ये मूव कर रहा है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी ही प्रोवाइड करा रहा होगा इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटी कितनी होगी भाई, कैपिटल जी स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर टू सेंटर सेपरेशन दोनों का यही है ना, बोलो। अब हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, बट आपको विजुलाइजेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं बार बार बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी सर्कुलर ट्रैक पे ऑब्जेक्ट होगा उसकी टेंडेंसी होती है ना बाहर निकलने की, है ना। तो इसलिए मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल ले लिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, बट आपको समझने में आसानी होता है ना। तो जो ग्रेविटी है वही प्रोवाइड करा रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखना, ग्रेविटी इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम, वो कितना होगा, m v स्क्वायर बाय r, r से r कैंसिल, तो व्हाट विल बी गेटिंग, m से m कैंसिल। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, gm बाय स्मॉल r, यही होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इस ऑर्बिट में कितने वेलोसिटी से मूव करे। एक बात बताओ, जैसे जैसे दूर जाओगे ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी कि बढ़ेगी, r बढ़ रहा है तो v घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो याद रखना, जितना जितना दूर जाओगे ना, तो इस ट्रैक में रहने के लिए, इस सर्कुलर ट्रैक पे रहने के लिए वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और जितना जितना पास आओगे तो इस ट्रैक पे रहने के लिए, सर्कुलर ट्रैक पे रहने के लिए वेलोसिटी को बढ़ाते जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये क्लियर है।
बोलो। तो ये तो था ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा, रेडियस के टर्म में निकाल लो ना, वो कितना होगा रेडियस, gm/v², यही होगा ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है। अब टाइम पीरियड भी तो निकाल सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ दिस कितना होता है, 2πr/v, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड होगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr, कितने स्पीड से जाना है, v, v कौन कितना है, ये निकल जाएगा, बोलो। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12mv², ये निकल जाएगा, बोलो। तो कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, 12mv², इसका होल स्क्वायर करेंगे तो gm/r, हाँ gm/r हो गया, तो ये हो जाएगा कैपिटल G m डिवाइडेड बाई 2r काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका मतलब आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हो, ऑर्बिटल रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, टाइम पीरियड तो निकल ही गया, ये सब चीज़ें हो गई, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ये दो सिस्टम का होता है, एक हेवनली बॉडी है और दूसरा छोटा बॉडी है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कौन कौन से सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, कोई बता सकता है। अर्थ मून, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, और सन अर्थ, है ना। सन और अर्थ के लिए भी एप्लीकेबल है, जब सन बीच में है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये और किसके लिए वैलिड है, अर्थ इज देयर, उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लाइक फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, बताओ। आर्यभट्टा, यस वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब सिस्टम के लिए वैलिड है। तो ये फॉर्मूला तो सभी के लिए लगा सकते हो ना। इस ऑर्बिट में, इतने ऑर्बिट में इतने हाइट, और हाइट निकालना है तो क्या होगा, ये हाइट कितना होगा h, और ये कितना होगा r होगा। तो स्मॉल r को और मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल R प्लस h, हाइट, है ना। जब इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा सा चीज़ और याद रखो, जैसे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड आपको पता है, तो इसको रिलेशन जल्दी से करेंगे हम। टाइम पीरियड कितना होता है, 2πr/v, v कितना है, √gm/r, है ना। ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, व्हाट यू विल बी गेटिंग, t² इज इक्वल टू, नॉट t², t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर, ये कितना होता है नीचे, ये उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, डोंट यू थिंक। ये अंदर में रूट में है, तो ये कितना है 2πr डिवाइडेड बाय, इसको √gm यहाँ ले लो, तो ये 1/√r हो जाएगा नीचे। √r कितना होता है, r की पावर हाफ, है ना। तो ये हाफ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये अच्छा ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √r में चला जाएगा। √r कितना होता है, r मल्टीप्लाइड बाय √r, कितना होगा, r इंटू आर की पावर हाफ इज इक्वल टू कितना होगा, r की पावर 3/2 होगा। ये चीज़ किसको क्लियर नहीं है, टाइम पीरियड होता है भाई 2πr, है ना, बाय v, 2πr बाय √gm/r, तो √gm/√r ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा भाई, 2π बाय √gm, r की पावर 3/2 नहीं हो जाएगी। तो याद रखना, किसी भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल रेडियस r है और इसका टाइम पीरियड का रिलेशन होता है, तो इसको मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूं तो यू विल बी गेटिंग t² इज इक्वल टू 4π² डिवाइड बाय gm r की पावर क्यूब।
ये है आपका केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। पहला क्या है कि कोई भी प्लानेट जो रिवॉल्व करता है किसी भी हेवनली प्लानेट के चारों तरफ, वो इलिप्टिकल होता है ऑर्बिट, है ना, यही है, विथ सन एट इट्स वन फोकस। तो यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ है, ये सन है, और ये चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा होगा? अर्थ। इफ इट इज सन, अगर सन यहाँ है तो अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, कभी दूर जाएगा फिर पास आएगा, दूर जाएगा फिर पास आएगा, है ना। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। सेकेंड लॉ क्या कहता है? केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या होता है भाई प्लानिटरी मोशन का? कि फर्स्ट लॉ तो यही है कि द ट्राजेक्टरी ऑफ द रिवॉल्विंग बॉडी इज ऑलवेज इलिप्टिकल विद सन एट इट्स वन फोकाई। या तो यहाँ हो सकता है सन, या तो वो यहाँ हो सकता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्लानिटरी मोशन में क्या कहता है भाई? सेकेंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन कहता है कि इसका इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर वो यहाँ है, टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इतना एरिया कवर किया। आई होप दिस इज इट विजिबल टू एवरीवन? टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उतने ही टी टाइम में वो सेम एरिया कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम होगा, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे v1 r1 मस्ट बी इक्वल टू v2 r2, सेकेंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। इसका मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब कि जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की कम हो जाएगी, जहाँ रेडियस कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब तो इसका मोशन कैसा होगा प्लैनेट का? जैसे ही वो दूर जाएगा स्लो हो जाएगा, जैसे ही पास आएगा तेज हो जाएगी स्पीड, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बताओ क्लियर है ना। तो सेकेंड लॉ सेज कि v1 r1, अगर इसका रिलेशन हमेशा कांस्टेंट है, मान लो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है v1, इसका रेडियस कितना है r1, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है v2 और रेडियस कितना है r2, तो इन दोनों को इक्वल कर देना, इक्वेट कर सकते हो आप। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रिंसिपल कंजर्व होता है इसमें? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है इसमें, नॉट लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम टर्म होता है, एल से डिनोट करते हैं, दिस इज आर क्रॉस पी, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी के बराबर होता है। मान लो ये है, इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है v वेलोसिटी से m ऑब्जेक्ट का, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा? m क्रॉस v, mv होगा। और ये यहाँ से कितनी दूर पे है? r, तो एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए आप यही याद रखें कि जितना दूर जाएगा स्पीड कम हो जाएगी प्लैनेट की, जितना पास आएगा स्पीड बढ़ जाएगी। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ द, सिर्फ आप इतना याद रखो, ये आ गया। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ दिस ऑर्बिटल रेडियस, डोंट यू थिंक? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यूब। तो जल्दी बताओ, अगर एक प्लैनेट है जिसका मास है m, ठीक है, आप एक ऑर्बिट पे हो, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड कितना है t, और ऑर्बिटल रेडियस है r। अगर मैं डबल ऑर्बिट पे चले जाऊँ जहाँ पे रेडियस 2r है, तो यहाँ टाइम पीरियड कितना होगा, बता सकते हो? तो इसका मतलब यहाँ से रिवॉल्व कर रहा होगा, यहाँ से भी रिवॉल्व कर रहा होगा, तो इसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा? 8 टाइम्स। वेरी गुड। देखो, क्योंकि t यहाँ क्या करोगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इस केस में, है ना। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के ले लेता हूँ मैं कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो कांस्टेंट कौन सा होता है? 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम, है ना, के कांस्टेंट
4π²/gm जो आया था। तो ऐसे ही अगर ले लोगे तो आप इन दोनों का डिवाइड कर दो, है ना, जैसे कि यहाँ पे भी करेंगे तो टी डैश कितना होगा, k टाइम्स ऑफ r का होल क्यूब, तो 2r का होल क्यूब होगा इसका टाइम पीरियड निकालने का। तो ये कितना हो जाएगा भाई, टी डैश इज, हाँ, टी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 2⁴ 8 इंटू आर क्यूब। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, t1 डैश इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 8। के आर क्यूब क्या होता है, टी स्क्वायर, है ना, बोलो। तो t कितना हो जाएगा, √8 ऑफ t, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2√2 टाइम्स हो जाएगा ना, क्लियर। या इन दोनों को सीधा डिवाइड भी कर देना, तभी भी कैसे के कैंसिल हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हो, t² बाय टी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाई k टाइम्स ऑफ 2r का होल क्यूब। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। कैपिटलिस्ट थर्ड लॉ। चलो भाई जल्दी से अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना, पूरा चैप्टर तो हो ही गया है। क्वेश्चन कम टू ए स्क्रीन नाउ, करो। A satellite is revolving around the sun in a circular orbit with uniform velocity v. If the gravitational force suddenly disappear, the velocity of the satellite will be, क्या होगा? Yes, tell me. चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो अपने आंसर्स, बताओ। मतलब सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ना, विद वेलोसिटी v। ओके, अरिजीत का आंसर आ रहा है b, यू आर सेइंग b। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? मयंक का भी b आ रहा है, दक्ष का भी आ गया है b, ईशानवी इज ऑल्सो सेइंग b, अव्यक्त इज ऑल्सो सेइंग b। अव्यक्त का b, अव्यक्त v ऑप्शन कहाँ है? अच्छा v स्पीड से निकल जाएगा, चलो ठीक है। देखो सेम केस, सेंट्रीपिटल फोर्स वाज बैलेंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कर दोगे, सेंट्रीपिटल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिस इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये अपना इस ट्रैक पे, क्योंकि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इधर है, तो ये सेम ट्रैक पे जाके टेंजेंशियली v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है। सो b वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, जल्दी बताओ। यस, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन द इक्वेटर एंड पोल, क्या होगा? और इट इज लीस्ट ऑन द इक्वेटर और इज लीस्ट ऑन द पोल, इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन आना चाहिए? देखो एम्बिग्यूटी थोड़ा सा ये होगा, क्योंकि इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेटर पे तो आप मे बी और थोड़ा सा वेरी कर सकता है ना इक्वेटर, क्योंकि अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए आप ये एक्सप्रेशन भी आप थोड़ा गलत कर सकते हो ना, कि मान लो इक्वेटर पे आप गड्ढे में हो या इक्वेटर पे माउंटेन पे हो, तो उस पर भी थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ठीक है। बट इन जनरली क्या होना चाहिए सही? यस, इज इट सेम ऑन द इक्वेटर एंड पोल? ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लीस्ट ऑन द पोल
ये तो मैक्सिमम, लगभग मैक्सिमम होता है। ऑल दो पोल्स पे भी क्या होता है, पोल्स पे भी माउंटेन होगा, है ना, और क्या कहते हैं स्टीप्स होगा, और क्या कहते हैं डाउनफॉल होगा, बट इन जनरल अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इसमें नहीं होगा। लीस्ट एट द इक्वेटर ये एक पॉसिबिलिटी है ना। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ये तो गलत ही है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपका वैसे सही है बिल्कुल। सो इट इज़ लीस्ट ऑन इक्वेटर, ठीक है। ऑल्दो इक्वेटर पे भी कहाँ लीस्ट होगा वो आपको डिपेंड करता है, वो आपके माउंटेन्स पे हो कि या अंदर स्टीप पे हो या पानी के अंदर हो, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। शैल बी मूव ऑन। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जल्दी बताओ क्या होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ्ड, दोनों का मास आधा कर दिया गया है, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम, बताओ क्या होना चाहिए। ए, सिद्धार्थ का आ गया है, ठीक है। हर्षित, शौर्य, शौर्य यू ऑलरेडी, शौर्य आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो ना। अच्छा, दूसरे वो आप ही हो। एक और शौर्य से कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग वेदर इट्स यू और नॉट। ठीक है, सो जल्दी बताओ। सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग एफ बाई टू, एफ बाई फोर, मतलब जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। मान लो दो मासेस हैं, है ना, दोनों के बीच का फोर्स कितना है, जी एम, एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही है। एम वन एम टू, अब दोनों के बीच का क्या है, मास आधा आधा कर दो ना। सेकेंड केस में एम वन बाई टू, एम टू बाई टू, तो जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, वो जी एम वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एम टू बाई टू इंटू आर स्क्वायर, सेपरेशन अभी भी वही है। तो इट वुड बी, डोंट यू थिंक इट वुड बिकम वन फोर्थ ऑफ पहले वाला, है ना, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, बताओ। वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ अ रेडियस आर इज, इसको तो बोलने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, बता सकते हो वेट कितना होगा। वेट डिपेंड्स अपॉन एम इंटू जी। वेट किस पे डिपेंड करता है, मास इंटू ग्रेविटी। मास तो जीरो नहीं हो सकता, कौन से केसेस में जी जीरो होगा, तभी तो वेट जीरो होगा, बिकॉज मास कैनॉट बी जीरो ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा आंसर, ओके बताओ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ द रेडियस आर इज, क्या होगा। तो वेट जीरो, ओके क्वेश्चन ये पूछा था सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट क्या होगा, ठीक है, तो ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे जी ज़ीरो होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो। चलो भाई आगे क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से। हाँ चलो ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी, ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर क्यूब। टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट रिवॉल्विंग द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r विल बी, क्या होगा, करो। यस टेल मी। दक्ष का आ गया है, दक्ष सिंह, ओके ए, शौर्य सिंह सी, एंड दिशा इज सिंह सी 8 टाइम्स। मयंक का भी सी आ गया है वैसे तो,
हर्षित इज ऑल्सो सेइंग सी। दक्ष का भी सी है। चलो ठीक है, देख लेते हैं हम। सीधा डायरेक्ट पुट कर सकते हो ना, टी गिवन है, आर गिवन है, एक ऑर्बिटल रेडियस पे टाइम पीरियड है टी, ये वाली बॉडी होगा, है ना। तो हम सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर क्यूब कर लो, है ना। अब नया टी निकालना है, टी डैश, जहाँ पे रेडियस कितना हो जाए 4r हो जाए, तो यहाँ पे टी डैश कितना होगा, लेट टी डैश भी टी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 ले लो, चलो T1 या टी डैश जो भी लेना है, के टाइम्स ऑफ 4r का होल क्यूब, तो दोनों को डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 4 क्यूब इंटू आर क्यूब। तो के आर क्यूब कैंसिल, यू विल बी गेटिंग टी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यूब इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा। तो टी डैश का होल स्क्वायर, तो टी डैश कितना होगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ दिस 4 इंटू टी स्क्वायर, तो क्या बाहर आ जाएगा इसका 2 to the 4 to the 8, तो 8 टाइम्स ऑफ टी, है ना। ठीक है, निकाल सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन पता है, थर्ड लॉ हमें कैपलर्स थर्ड लॉ ऑलरेडी पता है, तो मैं सीधा डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इस टाइप से भी याद रखो, T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का होल क्यूब। आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, T1 पे रेडियस R1 है, T2 पे रेडियस R3 है, R2 है, ठीक है। शैल वी मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये लो, बताओ क्या होगा। 2 artificial satellites of mass m1 and m2 where m1 is greater than m2 are revolving around the earth in a circular orbit of radius r1 and r2, जो कि r1 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू r2, मतलब ये r2 होगा और ये r1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जल्दी बताओ क्या होगा। मास इसका m2 है और इसका मास m1 है, क्या होना चाहिए। Daksh is saying C. Disha is also saying C. Shaurya is also saying C. अब तो इतना तो पढ़ा चुके हैं आपको, है ना, तो आप आसानी से कर सकते हो, आप आसानी से। व्यक्त इज ऑल्सो सेइंग सी। जितना जितना दूर जाएंगे, अगर इसी ऑर्बिट में इसको अगर रिवॉल्व करना है, तो इसकी स्पीड क्या होती चली जाती है, क्या होती चली जाती है, कम हो जाएगी। हाँ, तो ये सो दैट मीन्स कि v1 कम होगी एज कम्पेयर टू v2, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। और बताया भी था मैंने, रिलेशन क्या है, v इज रूट टाइम्स gm बाय r, यही होता है। gm बाय स्मॉल r ले सकते हो, स्मॉल r इज योर ऑर्बिटल रेडियस, है ना। वेलोसिटी इन दिस ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में v वेलोसिटी है वो कितना होता है, मान लो इसका ऑर्बिटल रेडियस है r, इट इज़ gm बाय स्मॉल r। एक चीज़ और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी इस सैटेलाइट के खुद के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस हेवनली बॉडी के मास पे डिपेंड करता है ना। तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अगर मैं दो ऑर्बिट ले लूँ, सपोज दिस इज अर्थ हुज मास इज m, सेम ऑर्बिट ले लूँ मैं, इसी ऑर्बिट में एक m1 सैटेलाइट है और दूसरा m2 सैटेलाइट है, सेम ऑर्बिट में, है ना। तो दोनों का ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगा क्या, बताओ। यस, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ दिस प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑर्बिटल रेडियस, क्योंकि दोनों का ऑर्बिटल रेडियस आ रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Consider heavenly body which has mass twice that of Earth and radius thrice the weight of the book on its heavenly body if the weight on the on Earth is 900. जल्दी बताओ क्या होगा. यस टेल मी क्या आया. डी आ रहा है. ठीक है देख लेते हैं. ओके किस किस का आ गया. दक्ष का, दिशा, अरिजीत एंड बाकी नहीं कर रहे हो क्या. शौर्य, शुभम. ठीक है देख लो. दूसरा प्लानट है. पहले अर्थ का कंसीडर करते हैं. मास एम, रेडियस आर, है ना. इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो कितना होता है जी एम बाई आर स्क्वायर. अब दूसरे प्लानट पे चले जाते हैं जिसका मास कितना है थ्राइस 3m एंड रेडियस इज ओके मास इज ट्वाइस एंड रेडियस इज 3r. तो यहाँ g कितना होगा पहले ये निकाल लेते हैं. g वुड बी g 2m बाय 3r का होल स्क्वायर. तो व्हाट विल बी गेटिंग 2 बाय 9 है ना. सो इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2/9 ऑफ ये होगा अर्थ 2/9 टाइम्स ऑफ एक्स एज कम्पेयर टू अर्थ. यही होगा बोलो. तो इतना पता चल गया हमें. अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो. उस प्लैनेट पे इसका वेट कितना होगा एम जी डैश मल्टीप्लाइड बाय तो वहाँ 2/9 टाइम्स ऑफ एम इंटू जी. दोनों जगह एम मल्टीप्लाई कर दो है ना. तो यही इसका वेट होगा उस प्लैनेट पे. कोई दिक्कत. एम मल्टीप्लाई कर दो ना क्या फर्क पड़ता है. ये वेट सीधा निकाल लो एम इंटू जी डैश. जी डैश की वैल्यू ऑलरेडी ये है. ठीक है तो जल्दी बताओ. और इस प्लैनेट पे वेट कितना है एम जी ऑलरेडी गिवन कितना है 900 न्यूटन. ये गिवन है तो 2/9 टाइम्स ऑफ 900 कर देंगे हम. तो कितना आ जाएगा 200. तो वेट उस प्लैनेट पे कितना आएगा 200 न्यूटन. कोई दिक्कत है इसमें बोलो. ये सिद्धांत एंड शौर्य क्लियर है ना. चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये बताओ ये करके देखो. ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी. टू सॉलिड स्पेयर ऑफ मास ऑफ सेम रेडियस आर एंड सेम मटेरियल. वर्ड्स देखना क्या बोल रहा है. दो सॉलिड स्फेयर है सेम रेडियस है जिसका रेडियस सेम है ना. एंड सेम मटेरियल. इसका मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है. सेकंड एक्सप्रेशन
आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर सेंटर्स आर 2r अपार्ट। तो दैट मीन्स कि ऐसे ही रखा होगा, है ना, ऐसे रखा होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम इज प्रोपोर्शनल टू, करो। वी नो दैट लेट इसका मास m है, m1 है, लेट इसका मास m2 है, क्योंकि ये नहीं गिवन है कि दोनों का मास सेम है। बताओ, सेम रेडियस है एंड सेम मटेरियल का बना है, तो डेंसिटीज तो दोनों की सेम है। ऑल्दो जिसकी डेंसिटी भी सेम है और ये भी सेम है, तो होना तो सेम ही चाहिए था। बताओ क्या होगा फिर भी। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, यही होगा। सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज 2r। ओके, कितना आ रहा है, ओके दिशा का आ रहा है d, भूमि का आ रहा है d, ईशानवी d। ठीक है, देख लेते हैं हम। सेपरेशन 4 आ रहा है, such a way that their centers are 2r apart। सेंटर्स आर 2r apart है ना इसके, तो ये ऐसे ही तो रखा होगा चिपका चिपका। ठीक है, तो जल्दी से करो। मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, डोंट यू थिंक यही होगा। अगेन इसका डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम है, मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस तो दोनों का सेम ही है ना, डिवाइडेड बाय 4 r की पावर होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करो। कितने के प्रोपोर्शनल है, इसको लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है, वो निकालना है ना। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का 6 डिवाइडेड बाय r की होल स्क्वायर। कितना होगा, सो C वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या चीज, हाँ -4 है वो। हाँ बोलो। देखो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अगर ये स्फेरिकल बॉडी है, सपोज mkg का है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका रेडियस r है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये रिलेशन हमने यूज किया है। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The value of g on moon is 1/6 of the value of on earth. The man jumps 1.5 meter high on the earth. He can jump on the moon up to height of, बताओ क्या होगा। सिंपल, सारी चीज़ें फॉर्मूला का रिवीजन होगा यहीं से। सपोज आप u स्पीड से ये मून पे थ्रो करते हो और सेम u स्पीड से अगर अर्थ पे थ्रो करते हो और मून पे थ्रो करते हो, तो ये चला जाता है कितना हाइट, 1.5 मीटर, है ना। ठीक है, तो ये कितना हाइट पे जाएगा भाई, क्योंकि ग्रेविटी कम है तो ये और ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हाइट पूछी है, कितना होगा। अब तो मैंने डायग्राम भी बना दिया, उससे क्लैरिटी आ गई होगी कुछ। यहाँ जी होता है, यहाँ g/6 ले लो, क्या आएगा, ओके। अरिजीत का आया है, अरिजीत आपका क्या आ रहा है, यही आ रहा है ए। मयंक का भी आ गया ए। पूरा हिंट काफ़ी है इतना। 1.5 कितना होता है, वी ऑलरेडी नो दैट हाइट रीच इज इक्वल टू u² बाई 2g होता है ना। तो
तो 1.5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g के बराबर। यहाँ हाइट निकालनी है हमें, वो कितना होगा, यू स्क्वायर बाय 2g/6, डोंट यू थिंक यही होगा। सो 6 ऊपर चला गया तो यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, h इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1.5, कितना आएगा 9। सिंपल, ठीक है। यस अखिल, दिशा, तने, तने आज आप जवाब नहीं दे रहे हो, क्या हो गया, क्लियर है। एंड व्हाट अबाउट हर्षित गोयल एंड शौर्य एंड आदित्य, आदित्य तो हाँ जवाब दे रहा है, यस। शुभम, ये शुभम आया। द क्वेश्चन कम टू योर स्क्रीन नाउ, द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देखो क्या होगा भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यस बताओ क्या गिवन है। और रॉकेट इज लॉन्च टू ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो एक स्टेप से रॉकेट बना लेते हैं, इनिशियली स्टार्ट हुआ होगा, रॉकेट जा रहा है भाई, जा रहा है, ठीक है। रॉकेट तो नहीं लग रहा है ये, चलो रॉकेट स्टेप से बना लो, नोजल्स निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। रॉकेट इज मूविंग लाइक दिस, लॉन्चेस एंड ट्रेवल अ वर्टिकल डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड, अभी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है भाई, है ना, जस्ट लाइक दिस विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रेवलिंग 35 सेकेंड्स, तो आफ्टर ट्रेवलिंग 35 सेकेंड द रॉकेट डेवलप्ड स्नैग एंड इट्स फ्यूल सप्लाई कट ऑफ, तो मतलब ये इंजन बंद हो गया होगा। अब क्या करेगा, रॉकेट कुछ ऐसे ऊपर गया होगा क्योंकि इसकी स्पीड हुई होगी, फिर ऐसे नीचे गिरेगा, है ना। सो द रॉकेट दैन ट्रेवल्स लाइक अ फ्रीली बॉडी एंड द हाइट अचीव्ड बाय इट इज, सो मैक्सिमम हाइट पूछा है, यहाँ से कितना अचीव किया होगा उसने, क्योंकि इसका स्पीड गेन किया होगा इसने, अभी स्पीड ऊपर जाएगा फिर ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा, तो बताओ क्या होगा, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। बी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। किसका आंसर आया, बी, दिशा का आ गया, ओके वेरी गुड दिशा। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, क्या हुआ भाई, क्वेश्चन आते ही ना एकदम से दिमाग के क्या कहते हैं घोड़े दौड़ाने लगा करो, है ना, और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया करो जल्दी से, विजुअलाइजेशन पहले और जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट, बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग फॉर यू, कि कितनी जल्दी आप कर पाते हो क्वेश्चंस। यस, व्हाट अबाउट अदर्स, अखिल, मयंक, सो ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट से, फिर वापस नीचे आएगा। तो 35 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, क्योंकि इसको कांस्टेंट स्पीड से जाना है 20 मीटर पर सेकंड, सो दिस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 20, टाइम इज 35, तो यू विल बी गेटिंग 700 मीटर। तो 700 मीटर हाइट पे इसका इंजन कट ऑफ हो गया होगा, है ना, और उसके बाद ये ऊपर से नीचे गिरेगा। तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड ऊपर जाने की कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी इनिशियल स्पीड ये है, और ये मैक्सिमम हाइट यहाँ से ऊपर h कितना जाएगा, h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाय 2g, तो u कितना है 20, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, तो 20 से 20 कैंसिल, और कितना जाएगा 20 मीटर और ऊपर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 700 प्लस 20, तो 720 मीटर मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, उसके बाद ऊपर से फॉल कर जाएगा नीचे, ठीक है, बोलो, ठीक है, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ईशानवी,
ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये तो बिल्कुल इजी है, करके देखो, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। Two blocks, one of iron and another of wood, are dropped from the height at the same time. If the time taken by the block to reach the ground is Ti and Tw respectively, then एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है तो क्या होगा, कितना टाइम बाद वो नीचे गिरेगा, दोनों का टाइम किसका ज़्यादा होगा? दक्ष का आ गया है बी। यस, तन में, ठीक है, तने का भी इस बार तने ने भी दे दिया है, चलो बी ऑप्शन। हाँ, वी ऑलरेडी नो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबका सेम होता है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज़ीरो है, तो दोनों सेम टाइम में नीचे गिरेंगे। टी आई आयरन और वुड दोनों का सेम होगा नीचे गिरने का, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का सेम ही है ना, इसके खुद के मास पे डिपेंड नहीं करता, तो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो वेरी गुड, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जल्दी से करो आप ये वाला, ये भी सिंपल है, बताओ। The value of g on the surface of earth is इतना, then the value of g on the surface of moon is, क्या होगा? मून पे कम हो जाएगी ना वैल्यू, या बढ़ जाएगी? यस, मयंक आ गया ए 6.67 10⁻11। एंड व्हाट अबाउट द अदर्स, बताओ क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है क्या? ओके, अरिजीत का भी ए आ गया है, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन, दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नाम में ही कांस्टेंट लगा हुआ है ना, तो ये और लिखा भी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, तो यूनिवर्स में थ्रू आउट इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे मून पे ले जाओ ऑब्जेक्ट को, चाहे अर्थ पे ले जाओ, चाहे दूसरे प्लानट पे ले जाओ, चाहे ब्लैक होल के अंदर चले जाओ, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, जी की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, चलो ठीक है, आज के सेशन में हम यही क्वेश्चन करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, एक बार सॉल्व करो ये क्वेश्चन, है ना। सपोज यू हैव बीन गिवन that the magnitude of acceleration due to gravity at certain height or certain depth is equal. Are you getting my point? कि मैं कितने हाइट पे चले जाऊं या कितने डेप्थ पे चले जाऊं, वहां पे इन दोनों की वैल्यू सेम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो h बाय आर का रेशो क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? बताओ भाई। मतलब कि कितने हाइट पे चले जाओ या कितने डेप्थ पे चले जाओ, तो दोनों की वैल्यू सेम ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली जो सरफेस पे जी है, एच हाइट पे जाने के बाद घटती है, नीचे डेप्थ पे जाने के बाद भी घटती है, घट के दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या होगी वो? रेशियो ऑफ एच बाई डी, रेशियो ऑफ डी बाई आर। ओके, रेशियो ऑफ डी बाय एच पता करो, डी बाय एच, डी बाय एच का रेशियो क्या होगा? कोई बता सकता है? ये आदित्य कैसे करोगे? ईशानवी कैसे करोगे इसको? दोनों की वैल्यू इक्वल कर दो ना, यहाँ पे कितनी होती है जी, ओके, जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितनी होती है जी 1 माइनस डी बाय आर, दोनों को इक्वल कर देना है हमें, जी से जी कैंसिल, ठीक है,
ओके, ये उधर गया, ठीक है, ओके ये इधर जाएगा थोड़ा सा, ओके इसको 1 माइनस, इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व कर लूँ तो कितना हो जाएगा, दिस इज ये 1 अपॉन आर प्लस एच का डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर, यही होगा। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। तो इसी एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना था, बोलो निकल गया। तो ये इधर जाएगा, यू विल बी गेटिंग दिस वुड बी इक्वल टू आर क्यूब इज इक्वल टू आर माइनस आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस डी। इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। वैसे वेरिएबल्स बहुत दो वेरिएबल्स हैं, आर के टर्म्स में आपका आंसर आएगा, ठीक है। रेशियो पूछा है या डी बाई एच या इस टाइप से। अगर एक बात बताओ, अगर मैं h इज इक्वल टू आर बाई टू हाइट पे चले जाऊं तब ये रेशियो कितना आएगा, देखो h इज इक्वल टू आर बाई टू हाइट पे चले जाऊं तब ये रेशियो कितना आ रहा है, h इज इक्वल टू आर बाय टू। सो डी बाय एच का रेशियो, सो डी बाय आर का रेशियो कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो। अगर h इज इक्वल टू आर बाय टू हो जाए, मतलब इतने हाइट पे जाने के बाद भी, जहाँ पे नीचे इतने डेप्थ पे जाने के बाद भी ये रेशियो सेम हो, तो आसानी से डी बाय आर का भी रेशियो निकाल सकते हो इसी एक्सप्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसको यहीं से अगर सॉल्व कर दूँ, आर की वैल्यू आर बाय टू कर देता हूँ मैं, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू नीचे वाला कितना आएगा, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3 बाय टू, तो 2 ऊपर जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो 4 बाय 9 मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। ये क्लियर है। आर की वैल्यू एच की वैल्यू आर बाई टू हाइट पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो बताओ डी बाय आर का रेशियो कितना होगा। तो डी बाय आर का रेशियो, ये इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, डी बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 बाय 9, तो कितना आएगा 5 बाय 9। सो डी बाय आर का रेशियो 5 बाय 9 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चंस कर लोगे, बताओ। ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेई मेंस में आया था, ये सेम जो मैंने आर बाय रेडियस इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू एच बाई टू पे दोनों का, एंड ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, आर बाई टू हाइट पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ और यहाँ दोनों सेम हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस का है वैसे तो, है ना। तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं, मतलब आपने करे हुए हैं इस टाइप के, ऐसा नहीं कि नहीं किंग करवाया। यस बताओ, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। क्या चीज, ओके ठीक है, वेरी गुड। सो आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम फ्लूइड चैप्टर का करेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्लूइड्स हैं, विल बी डूइंग दैट थिंग्स इन अवर नेक्स्ट सेशन, ठीक है। आई होप टुडेज सेशन इज क्लियर टू एवरीवन। यस, है ना, क्लियर है ना। एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड यू हैव टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आल्सो, है ना, एट द सेम टाइम। तो जल्दी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करते रहो एट द सेम टाइम। ओके, विल एंड अप टुडेज सेशन। थैंक यू।